ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 62، مصنفہ مہر نور۔ کھیل اور مہرے الٹ گئے۔ مشل کی نظروں کے تعاقب میں اسلام کی نظروں بھی دروازے کے نیچے گئیں جہاں کسی کے قدموں کا سایہ تھا۔ اسلام مشل کا اشارہ سمجھ گیا۔ کوئی دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلام فوراً بیڈ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا دروازے تک آیا۔ اچانک مشل کو کوئی شرارت سوچی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے دیوار میں دے مارا۔ نکل جا یہاں سے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ اسلام اس کی ایکٹنگ پر بس مسکرا دیا۔ پھر اس نے غور سے نیچے دیکھا جہاں اب سایہ نہیں تھا۔ پھر اسلام نے کچھ پل بعد لاک کھول کر دروازہ کھولا۔ آس پاس نظر گھمائی، باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ پرسکون ہوتا دروازہ بند کیے واپس بیڈ تک آیا۔ کوئی تھا جو ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسلام بھی سنجیدہ ہوا۔ مشل نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ جب رملہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ بات کہی تب سچ میں ایک بار میں الجھا تھا۔ اسلام کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ مشل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں بھی پریشان ہوئی تھی، مگر آپ نے اس کے الفاظ پر غور کیا تھا؟ اس نے کہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس سچی کتاب کی کہ میرا بچہ نہ کسی کا گناہ ہے نہ ہی ناجائز۔ یہ بچہ جائز ہے۔ اس بچے کا باپ میرا شوہر ہے۔ اب مشل اور اسلام دونوں مسکرا رہے تھے۔ ہاں، ہمارے ہاتھ میں رملہ کی کمزوری آ چکی ہے اور اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ ہم اس کا سچ جان چکے ہیں۔ مشل نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ اور یقیناً اس نے یہ نکاح آپ سے نکاح کرنے سے پہلے ہی کیا تھا، اس لیے وہ بہت اچھے سے جانتی ہے کہ وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، مگر کوئی ہے جو اسے یہ سب ڈرامہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں کافی سنجیدہ تھے۔ ہاں، رملہ کی پریگننسی رپورٹ پر ڈیٹ دیکھ کر ہی میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ 1 ماہ پہلے یہاں آئی ہے اور اس کی رپورٹ کے حساب سے وہ 6 ہفتے سے پریگننٹ تھی۔ مطلب وہ پاکستان آئی اس سے پہلے ہی وہ ماں بننے والی تھی۔ مشل کھول کر مسکرائی تھی۔ ہاں، اپنے شوہر کے بچے کی ماں، جیسا کہ اس نے سب کے سامنے کہا۔ وہ سب کو یہی تاثر دے رہی ہے کہ وہ بے قصور اور لاچار ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ اسے ایئرپورٹ سے لینے ہی کیوں گئے اور کیا ہوا تھا اس رات؟ مشل کو اب تک یہ جواب نہیں ملا تھا۔ ہاں، اس رات چچا سائیں کا فون آیا تھا کہ رملہ پاکستان آ رہی ہے، اس کی فلائٹ 9 بجے لینڈ کرے گی، میں شہر میں ہوں تو اسے لے آؤں۔ گاؤں سے اب اتنی رات کو کوئی جائے مناسب نہیں۔ میں کیا کہتا، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اس لیے ہاں کر دی۔ اسے ایئرپورٹ سے پک کیے میں شاہ ولا چلا گیا تھا۔ وہاں وہ نیچے گیسٹ روم میں رک گئی تھی اور میں وہ اوپر اپنے کمرے میں تھا۔ 2 گھنٹوں بعد وہ کافی کا کپ لیے میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کافی صرف ایک گھونٹ ہی چکی تھی، ذائقہ میری پسند کا نہیں تھا تو میں نے چھوڑ دی، مگر اس اپنے پینے کے بعد اچانک سر چکرانے لگا تھا۔ رملہ نے ضرور میری کافی میں کچھ ملایا تھا۔ اس نے سونے کا ڈرامہ کیا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلی صبح میں اسے حویلی لے آیا۔ مشل نے اس کی ساری بات غور سے سنی، پھر جیسے رملہ کا مقصد سمجھ گئی۔ اس کا مقصد صرف آپ کو بے ہوش کیے یہ بھلانا تھا کہ رات کو کچھ ہوا ہے جو آپ کو یاد نہیں۔ اسلام بھی مشل کا پوائنٹ سمجھ گیا۔ اچانک مشل کے چہرے پر دکھ ابھرا۔ مجھے رملہ سے یہ امید نہیں تھی، اس نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ تو ہیزل وقت رہتے وہاں آ گئی اور مجھے بچا لیا، مگر ان سب میں بالاج بھائی نے ہیزل پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اسلام نے اس بات میں سر ہلایا۔ رملہ نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہے، ورنہ وہ ہیزل پر غصہ نہ ہوتا۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، تم جاوید سے سچ میں ناراض ہو؟ اسلام کو جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مشل نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل، وہ میرے بھائی ہیں، اگر ان کی قسم کے چکر میں آپ نے سچ مچ کسی اور سے نکاح کر لیا ہوتا تو؟ بگ برو کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے میں نے ناراضگی شو کروا رہی ہوں، ورنہ میں ہیزل یا بگ برو سے ناراض کیسے ہو سکتی ہوں؟ ہاں، بس مجھ سے ہو سکتی ہو، اسلام نے جلا کٹا طنز کیا۔ مشل کھل کر مسکرائی، پھر اس کے سینے پر سر رکھا۔ آپ سے اب کبھی ناراض ہونے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ آپ نے زویا قریشی سے نفرت کا اظہار کیا، مگر پھر بھی اس کے سر سوتن لانے جیسا کام کیے اسے تکلیف نہیں دی۔ آپ کی اس حرکت نے مجھے آپ کا مزید دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس بات نے مجھے مغرور کر دیا ہے کہ آپ کی بیوی کے رتبے پر فائز ہونے والی واحد عورت میں ہوں۔ میں مغرور ہو رہی ہوں شاہ کہ میں ہی آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہوں۔ اسلام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے۔ تمہارا مغرور ہونا بنتا ہے میری جان، تم تو میرے دل کی سلطنت پر براجمان ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے اور صرف تمہیں سے عشق کیا ہے۔ مشل کے سینے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیے سکون کی سانس لی۔ یہ رملہ کے کمرے کا منظر تھا۔ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اسلام شاہ تمہیں سب کے سامنے طلاق دے چکا ہے،
एक बच्चा हमारा हथियार था, तुमने वो भी ज़ाया करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? कोई उसके सामने खड़ा गुस्से से धार रहा था। हाँ, फिक्र मत करें, हमारा मकसद इन दोनों को अलग करना था। वो हो रहा है। वो मशल कभी भी इस्लाम शाह को माफ़ नहीं करने वाली। वो तो यही समझ रही है कि इस्लाम ने उसे धोखा दिया। बस सरदारनी बनने की मेरी हसरत हसरत ही रह गई। वो बेड पर गिरने के अंदाज से लेटी। वो शख्स भी उसके पास बैठा। वो हसरत तो तुम्हारी वैसे भी पूरी नहीं होने वाली। तुमने पाकिस्तान से निकलते ही निकाह कर लिया था। भूलो मत, तुम्हारा इस्लाम शाह से कभी निकाह हुआ ही नहीं था। ये बस सब हवेली वालों की आंखों में धुगल झोंकनी थी, और वो तुम्हें अपनी तरफ से तलाक देकर फारग कर चुका। बच्चा भी नहीं रहा, इसलिए सारी हवेली वालों की नज़र में तुम्हारी तलाक भी हो चुकी है, इसलिए इद्दत भी ख़त्म। मगर रमला के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरा बच्चा नहीं रहा तो क्या हुआ? मशल शाह से इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगी। इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। हेज़ल कमरे में बंद थी। उस दिन के बाद वो बालाज के सामने नहीं आई थी। हाला कहाँ है? कल रात से नज़र नहीं आ रही। बालाज ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस की। आलम का चेहरा हद से ज़्यादा सपाट हुआ। वो जा चुकी है। कोई पहाड़ था जो हवेली वालों के सर पर गिरा। हर फर्द साकत रह गया। बालाज ने तेज़ी से अपना रुख आलम की तरफ मोड़ा। कहाँ गई है? आलम ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे आज़ादी चाहिए थी इस हवेली के दर दीवार से। उसने मुझे कहा कि मैं उसे छोड़ दूँ। मैंने छोड़ दिया। बालाज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने पूछा मेरी बहन कहाँ है आलम शाह? बालाज ने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया। वाह, आपको बहुत जल्दी नहीं फिक्र हो गई उसकी। जब से रमला आई है आप तो ये भूल ही गए हैं कि आपकी एक बहन और भी है, और आपकी बीवी भी है, जिसे आप फरामोश किए बैठ गए हैं। ये वही अज़ल है जिससे इश्क के दावेदार थे आप। अब कहाँ क्या वो इश्क? और जहाँ तक रही बात हाला की, तो वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी। वो कहाँ है, इस बात का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ना ही किसी को बताऊँगा कि वो कहाँ है। इसने मुझे जाते हुए साफ साफ कहा था कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा कि वो कहाँ है। आप जाएं और अपनी बहन की दिलजोई करें, जिसकी वजह से इस हवेली में हंसती बसती 4 जिंदगियाँ उजड़ रही हैं। आलम गुस्से से गरजता कुर्सी को ठोकर मारता उठा और तनफन करता लाउंज से निकल गया। इर्तिज़ा साहब को तो जैसे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा, मगर अलीना बेगम का दिल हौल उठा। उनकी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है। दिन एक एक करके गुजरने लगे थे। वह इस वक्त कमरे में बंद बैठी थी, बेड पर सर गिराए, नज़रें छत पर मरकूज़ किए। आंखों से बेआवाज़ आंसू निकलते तकिए में जज्ब हो रहे थे। दिल में कहीं एक उम्मीद थी कि शायद बालाज आए और इसे वापस कमरे में जाने को कहे। हो सकता है माफ़ी मांगकर सीने से लगा ले। मगर बालाज तो इससे दस्तबरदार होकर उसे भूल ही गया था। पहले शादी करने के लिए मर रहा था, और अब ये भी भूल गया कि उसकी कोई बीवी भी है। हेज़ल को इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। उसे रमला से नफ़रत नहीं थी, बस वो नहीं चाहती थी कि रमला की वजह से उसकी बहन की ज़िंदगी तबाह हो। मगर अपनी बहन का घर बचाते बचाते उसके अपने घर में दरार पड़ गई थी। इसने तो नहीं चाहा था कि रमला के बच्चे को कुछ हो, मगर कितनी आसानी से बालाज ने उसे कातिल करार दे दिया। इसने तो मशल और उसके बच्चे की जान बचाई। बालाज के सर पर अभी बहन की मोहब्बत का भूत सवार था। कोई बात नहीं, एक न एक दिन उसके सर से ये भूत उतर ही जाएगा। मगर हेज़ल अब उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। वो बैक गार्डन में बैठी थी। जनवरी का महीना अब ख़त्म होने को था। यह असर का वक्त था। कुछ देर गुजरी जब कोई उसके पास आकर बैठा। उसने गर्दन नहीं मोड़ी क्योंकि जानती थी उसके पास बेंच के दूसरे कोने पर कौन बैठा था। शावेज शाह ने कुछ कहने को लब खोले। गुड़िया। मशल ने उसे देखने की जहमत नहीं की। हाँ, गुड़िया ना कहें, उसे तो आपने अपने हाथों से मार दिया। मैं तो ज़ोया कुरैशी हूँ। मुझे ज़ोया कुरैशी होने की ही सज़ा दी थी ना आपने। उसने अपना चेहरा मोड़कर शावेज को देखा, जिसकी आंखों में नदामत थी। कितना फ़ख्र, मान, भरोसा, मोहब्बत थी मुझे आपसे। क्या किया? सब एक कसम की वजह से ख़त्म कर दिया। शावेज की आंखों से आंसू बहते उसकी बेड में जज्ब होने लगे। मशल के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। जो दूसरों की बहन बेटियों को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं ना, फिर वही तकलीफ़ इनकी अपनी बहन बेटियों तक आ जाती है। आप ज़ोया कुरैशी पर सौतन लाना चाहते थे ना? मुबारक हो, आपकी अपनी बहन पर वो सौतन आ गई। आपने तो कमाल कर दिया। इसलिए कहते हैं दुनिया गोल है। मशल ने दाद देने के लिए तालियां भी बजा दीं। उसे अंदर ही अंदर अपने भाई को इस हाल में देखकर तकलीफ़ हो रही थी, मगर उसे एहसास भी तो दिलवाना था कि उसने कितना गलत किया। मगर गलती सारी उसकी भी नहीं थी। आगा जान को रमला अजीज़ ही बहुत थी, और इनकी तो वैसे भी ख्वाहिश थी मशल के बाद रमला को हवेली की बहू बनाने का। इसलिए उन्होंने बस शावेज शाह के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई।
मशल इससे ज़्यादा अपने भाई को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। खामोशी से उठी और अंदर चली गई। पीछे शावेज़ अपनी गलतियों की सज़ा करता खाली हाथ रह गया। वो बेड पर पैर लंबे किए आरामदा हालत में बैठी थी जब तेज़ी से इस्लाम कमरे में दाखिल हुआ। वो सबको यही तासुर दे रहे थे कि दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मगर वो दोनों मुकम्मल पुरसुकून थे। वो संजीदगी से मशल के पास आया। मुझे ज़रूरी केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। पता नहीं कितने दिन लगे। तुम अपना ख्याल रखोगी, खाना एहतियात से खाना, 1 मिनट के लिए भी अकेली मत रहना। और हाँ, मैंने हिना और बीजान को बुलाया है, वो तुम्हारे पास रहेंगी। सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरने हुए एहतियात करना। इस्लाम उसे मुकम्मल हिदायत समझा रहा था। मशल ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। वो इसकी तरफ झुका, उसके सर पर लब रखे, फिर उसके पास बैठकर उसके पेट पर भी लब रखे, फिर उससे हक करता अपने सामान पकड़कर उठा और जल्दी आने का कहता निकल गया। ये रात का कोई पहर था। नीता तो अपने कमरे में थी। इस वक्त हेज़ल अपने पुराने कमरे में थी। नीता दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि बालाज ने उससे हुक्म दिया था। वो बेड पर लेटी थी। दिल लहूलुहान था। सुकून की नींद तो इससे आने से रही। पिंक रंग के सिंपल से ड्रेस में, बाल चेहरे के गिर्द बखेरे थे। इसे तो अपनी होश नहीं थी। बाल क्या संभालती। चेहरे पर सर्दियाँ घुल गई थीं। अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने बेहद हैरत से दरवाज़े की जानिब देखा जहाँ कोई अंदर दाखिल हो चुका था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसने तो लॉक लगाया था। वो क्यों भूल गई? क्या बालाज के पास डुप्लीकेट की होगी? बालाज की मौजूदगी महसूस करते वो ज़ोर से आंखें मीच गई। वो कदम कदम चलता उसके पास आया, फिर बेड पर बैठ गया। हेज़ल, उठो, कमरे में चलो। जैसे वो जानता था कि हेज़ल सोई नहीं है, मगर हेज़ल के जिस्म में कोई जुम्बिश ना हुई। हेज़ल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कह रहा हूँ उठो, हर ऊपर कमरे में चलो। उसने हेज़ल को दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। हेज़ल ने भी जिद होते आंखें खोलीं। यही मेरा कमरा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी आंखें तकलीफ़ की ज़्यादती से लाल हो गई थीं। एक माह बाद, पूरे 1 महीने बाद उसे याद आया था कि हेज़ल भी इस दुनिया में मौजूद है। पालाज ने बेयकीनी से उसकी हरदर्मी देखी। तुम शायद भूल गई हो, शादी के बाद शौहर के साथ उसके कमरे में रहा जाता है। वो दबा दबा सा घुराया। मैं कुछ नहीं भूली। भूल तो आप गए हैं। मुझे थप्पड़ मारकर यही कहा था ना कि अपनी शक्ल गुम कर लूँ और आपके सामने ना आऊँ। यही मोहब्बत और इश्क था आपका। मेरा वजूद हासिल किए, मुझे बेमोल किया और सबके सामने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी। वो भी गुस्से से चिल्लाई थी। उसकी आखिरी बात तो बालाज को अपनी रूह पर किसी थप्पड़ की तरह लगी। उसने हेज़ल का मुंह दबोचा। इस वक्त मैं शदीद थकन का शिकार हूँ। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। मगर नहीं, तुम्हें तो मेरी मर्दानगी देखनी है ना। बालाज सर लहजे में उसके चेहरे पर धाड़ा के हेज़ल के बदन में खौफ सरायत कर गया। उसने हेज़ल को कमर से दबोचा और दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां उलझाईं और फिर वह शिद्दत से हेज़ल के चेहरे पर झुका, अपनी सारी तकलीफ़ वो इसके अंदर उतारने लगा। हेज़ल जी जान से तड़प उठी, मगर आज बालाज का उसकी हालत पर रहम खाने का कोई इरादा नहीं था। उसके होंठों पर अपने दांतों से दबाव डाला कि खून का जायका दोनों के मुंह में घुल गया। उसके होंठ आज़ाद किए वह इसके गले पर झुका। हेज़ल ने अपनी सिसकियाँ रोकने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम। एक तो रमला का सीढ़ियों से गिरना, दूसरा हाल्ला का अचानक हवेली से कहीं चले जाना। बादशाह के असाब पर हथौड़े की तरह बज रहा था। ऊपर से हेज़ल भी उसको मज़ीद गुस्सा दिला गई थी। वो हेज़ल के वजूद में खोता खुद को पुरसुकून करने लगा। इसे सिर्फ सुकून चाहिए था, और मर्द की ज़ात का सुकून खुदा ने औरत में रखा है। हेज़ल के दोनों हाथ उसने तकिए से पिन किए। हेज़ल के मुंह से एक सिसकी निकली। बालाज की ग्रीन आंखों में खून उतरा। किस बात के टस पे बहा रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा। अगर मुझे सुकून चाहिए होगा तो तुम्हारे वजूद से ही सुकून लूँगा। अब अगर एक भी आंसू या सिसकी निकली तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बेरहम पेश आऊँगा। वो मज़ीद लहजे में उस सद लहजे में धाड़ा। हेज़ल ने अपनी सांस की आवाज़ को भी साकित कर दिया। बालाज ने अपनी शर्ट के बटन खोले, फिर कुछ ऊपर हुआ, शर्ट उतार फेंकी, दूसरे हाथ से कंबल खींचा और हेज़ल के वजूद पर साया फगन हुआ। हेज़ल अजियत से आंखें मीच गई। उसके होंठ हेज़ल के कंधे पर आए। फिर बालाज ने पूरी शिद्दत से वहाँ दांत गाड़े। हेज़ल के जिस्म में जलन उतरी। वैसे अब तकलीफ़ दे रहा था। हेज़ल ने बेडशीट दोनों हाथों की मुट्ठियों दबोची। दांत हर दांत सख्ती से जमाए। उसने अपनी सारी आहों और सिसकियों का गला घोंट दिया। बालाज उसके वजूद पर मुकम्मल तौर पर काबिज हुआ। रात कतरा कतरा पिघलने लगी। वो इसकी सारी शिद्दतें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती बेहाल हुई। उसे अपने अंग अंग से तकलीफ़ उठती महसूस हो रही थी। जब बालाज को अपने सीने में सुकून उतरता महसूस हुआ, उसकी दीवानगी का खुमार उतरा, तो वो इसे अपने सीने में भेजते गहरी नींद में उतर गया। हेज़ल की आंखों से आंसू बहते खनपट्टी में जज्ब होने लगे। बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की जलन काबू किए वो आंखें बंद कर गई।
अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। बालाज की आंख सुबह के 8 बजे खुली। कुछ देर अपने हवास बहाल करता रहा, फिर उठकर बैठा। नज़र सीधा हेज़ल के चेहरे पर गई। बालाज के तासुरात सपाट हुए। उसकी तरफ झुककर उसकी शर्ट ठीक करता उठा, अपनी शर्ट पहनी, फिर एक नज़र उसे देखा। उसकी पेशानी छुई। उसे बुखार हो रहा था। बालाज उसे सोता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद फ्रेश होता दोबारा वो हेज़ल के कमरे में आया। वो अब तक सो रही थी। बालाज ने झुककर उसके माथे पर लब रखे और कमरे से बाहर निकल गया। उसे कोर्ट जाना था। हेज़ल की आंखें दिन के 11 बजे खुली। कुछ देर तक वो लेटी रही, फिर उठकर बैठी, नज़र सारे कमरे में घूमी। रात का मंजर याद आते उसकी आंखों में तकलीफ इकट्ठी हुई। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते गालों पर बहने लगे। बालाज शाह से नफरत सी महसूस होने लगी। आई हेट यू बालाज शाह। अपना पसंदीदा डायलॉग बोलती वो बेड से उठी और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर निकली, फिर ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने बाल खुश करने लगी। इतने में उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसका ध्यान मोबाइल की तरफ कहाँ था। बार बार मैसेजेस आ रहे थे। फिर अचानक कॉल आने लगी। वो अपने ख्यालों से बाहर निकली, फिर उठकर बेड की साइड टेबल तक आई, अपना मोबाइल उठाया। पर आज की कॉल थी। हेज़ल के चेहरे पर छाई तलखी गहरी हुई। उसने कॉल उठाने की जहमत नहीं की। मोबाइल हाथ में पकड़े बस उसे देखती रही। कुछ पल बाद कॉल कट गई और दोबारा एक मैसेज आया। हेज़ल ने मैसेज ओपन किया। गुड मॉर्निंग वाइफ। दूसरा मैसेज था, उम्मीद है अच्छी नींद आई होगी। उसके बाद भी कुछ मैसेजेस थे। तुम्हारे बेड के साइड टेबल दराज में बुखार की मेडिसिन रख कर आया हूँ, याद से खा लेना। और हाँ, आज शाम मेरे हवेली में दाखिल होने से पहले वापस कमरे में चली जाना, वरना मैं रात को फिर आऊँगा और तुम्हारे साथ कल रात से ज़्यादा बेरहम पेश आऊँगा। और अगर तुम तब भी वापस कमरे में नहीं गई तो मैं अपना बोरिया बिस्तर इसी कमरे में सेट कर लूँगा। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, जो मैं कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। हिज़ल को अपनी जान हलक में अटकती महसूस हुई। उसकी आंखों में बेबसी उभरी। आखिरी मैसेज स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैं जानता हूँ तुम कॉल रिसीव नहीं करोगी, इसके लिए अलग से सज़ा मिलेगी, तैयार रहना। आखिरी मैसेज पढ़ते हिज़ल ने अपनी तेज़ी से मोबाइल बेड पर फेंका, जैसे करंट लग गया हो। उसे समझ ना आई अपनी बेबसी पर रोए या हंसे। वो वहीं बेड पर गिरने के अंदाज से बैठी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। बालाज असर के बाद हवेली में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसका रुख हेज़ल के कमरे की जानिब था। दरवाज़ा खुलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो कहीं नहीं थी। उसने वॉशरूम और ड्रेसिंग रूम चेक किया। बालाज के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मतलब उसकी बीवी उसकी वार्निंग बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो पुरसुकून होता ऊपर अपने कमरे में आया, मगर खाली कमरा उसे मुँह चुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। बालाज ने देखा आज भी कमरे की हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। 1 महीने से वो इस कमरे में दाखिल भी नहीं हुई थी। उसका गुस्सा अब आसमान को छूने लगा। फ़ौरन नीचे गया। ताई से लेकर छोटी चची तक सबसे पूछा, मगर सबने लाइल्मी का इजहार किया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। बालाज का दिमाग भग से उड़ा। वापस कमरे में आया और हेज़ल को कॉल मिलाई, मगर वो उठा नहीं रही थी। बालाज अपने कमरे से बाहर निकला। जब उसे अज़लाम के कमरे से हेज़ल के मोबाइल की घंटी सुनाई दी। उसने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से मशल की आवाज़ आई कि आ जाएं। तो वो अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देख उसके तने असाब एकदम ढीले पड़ गए। सामने ही मशल सोफे पर बैठी थी और वो इसके पीछे खड़ी उसके बालों पर ऑयल मालिश कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बालाज का दिल तो किया एक थप्पड़ से रसीद करे, मगर खुद पर जब्त कर गया। मशल की नज़र जैसे ही बालाज पर पड़ी, उसने कुछ उलझन से बालाज को देखा। खैरियत बालाज भाई? उसने इस्तफसार किया। बालाज ने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? उसने बराह रास्त हेज़ल को देखकर सवाल किया। हेज़ल के हाथ 2 पल के लिए कँप आए थे। मैंने ही बुलाया था। मैं कमरे में अकेली होती हूँ, इसलिए रात को डर लग जाता है। ये मेरे साथ होगी तो मैं अच्छा महसूस करूँगी। क्यों? आपको कोई एतराज़ है? मशल बहुत आम से लहजे में सवाल कर रही थी, मगर बालाज ने उसके लहजे में साफ अजनबियत महसूस की। इसे खुद पर गुस्सा आया और शर्मिंदगी सी हुई। न जाने क्यों, मगर उसे लगा अब वो मशल से नज़रें नहीं मिला पाएगा। नहीं, मुझे क्यों कोई मसला होगा? वैसे भी तुम्हारी बहन है। तुम दोनों बहनें एक साथ रहो। मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? इतना कहकर वो रुका नहीं और बाहर निकल गया। हेज़ल का दिल छलनी छलनी हो गया। वो शिकस्ता कदमों से सोफे के पीछे से निकलकर सामने आई और मशल के पास बैठ गई। आंसू एक एक करते गालों पर फिसलते गए। मशल ने कुछ तासुब से हेज़ल को देखा। वो आज दोपहर में ही मशल के कमरे में आई थी और रोते रोते बालाज का सलूक भी बता दिया। इसलिए मशल ने कहा कि फ़िक्र मत करो, बालाज भाई से मैं खुद बात करूँगी। मशल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके पास बस तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज ही थे। बीजान और हिना दोनों हवेली आ चुकी थीं। वो इस वक्त लांच में बैठी बीजान के गले लगे रोने में मसरूफ़ थी और बीजान उसे बस हौसला दे रही थी।
مجھے یہاں نہیں رہنا بی جان، مجھے یہاں سے لے جائیں، ان سب نے مجھے دھوکے میں رکھا، کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے۔ رملہ کو سیڑھیوں میں کھڑا دیکھ کر مشل نے اپنی ایکٹنگ جاری رکھی اور بی جان کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہنا ایک طرف کھڑی دکھ سے مشل کو دیکھ رہی تھی، پاس ہی ہیزل بھی کھڑی تھی۔ بس میری بچی، میں آ گئی ہوں نا، اب میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ بی جان نے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا اور امینا بیگم کے ساتھ ساجدہ بیگم خاموشی سے کھڑی مشل کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ سچ تو یہ تھا وہ مشل سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے خیال سے وہ بھی مشل کی قصوروار تھیں۔ بی جان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آنے دو اسلام شاہ کو، میں جواب لوں گی، کیوں کیا اس نے ایسا؟ مشل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ کسی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، دھوکے باز اپنے دھوکے کی کیا ہی وضاحت کریں گے۔ میں نہ ہی اس شخص کا نام سننا چاہتی ہوں، نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ رونے لگی اور سیڑھیوں پر کھڑی رملہ کے چہرے پر سارے جہاں کی خوشی چمکی۔ اوہ بے وقوف رملہ! بی جان اور ہینا تیسرے فلور پر مشل کے ساتھ والے کمرے میں ہی رک گئی تھیں۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی فروٹس کے ساتھ انصاف کر رہی تھیں۔ ہیزل نیچے کسی کام سے گئی تھی۔ اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، پھر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ کیا حال احوال ہے محترمہ؟ اسلام شاہ کی سرشار آواز کانوں میں سنائی دی۔ دل میں گویا سکون سا اترا۔ اچھے حال احوال ہیں۔ مشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ اچھا، اور میرے بیبیز کیسے ہیں؟ اسلام کے سوال پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہم آپ سے سخت ناراض ہیں، مشل نے خفگی سے جواب دیا۔ دوسری جانب اسلام کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیوں بیگم؟ وجہ؟ مشل نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ کیا مطلب کیوں؟ اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں؟ کتنے دنوں سے غائب ہیں؟ بیوی بچوں کی کوئی فکر بھی ہے یا نہیں؟ اسلام دلکشی سے مسکرایا۔ قسم سے اس وقت پوری روایتی بیوی لگ رہی ہو۔ اور مشل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں خفگی ابھری۔ آپ نے مجھے تانے مارنے کے لیے کال کی ہے کیا؟ اسلام نے اس کے لہجے میں ناراضگی محسوس کی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اچھا یہ سب چھوڑو، میں نے تمہیں جو کام کہا تھا وہ ہوا؟ وہ اچانک سنجیدہ ہوا۔ مشل کا سر نفی میں ہلا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آپ نے کیا سوچ کر وہ کام مجھے دیا ہے؟ میں کون سا کوئی پروفیشنل ہیکر ہوں؟ اب وہ برے برے چہرے بنا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوشش کرو، ہو جائے گا۔ ویسے بھی تم کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہو، کچھ اپنی پڑھائی کے جوہر دکھاؤ۔ مشل کے حلق میں جیسے کڑوا بادام آ گیا۔ نہیں، یہ کام آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ اسلام نے فوراً نفی کی۔ نہیں بیگم، سمجھنے کی کوشش کرو، پروفیشنلزم ہے نا۔ ہمارے یہاں سب کسی فیمیل وکٹم کا ڈیوائس ہیک کرنا ہو تو فیمیل آفیسرز ہی کرتی ہیں۔ میں اپنے پرسنل کام کے لیے کسی کولیگ کو کیوں کہوں جب تم ہو؟ شاباش، یہ کام کرو۔ مشل بھی کچھ سنجیدہ ہوئی۔ لیکن اس کے لیے رملہ کے موبائل میں کچھ سافٹ ویئر انسٹال کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کا موبائل اڑانا پڑے گا، اور یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی۔ اسے رملہ کا موبائل ہیک کرنا تھا۔ ہاں تو کسی کی مدد لے لو نا۔ اسلام کی بات پر اس کے ذہن میں ہیزل آئی، مگر پھر اپنے خیال پر خود ہی نفی کی۔ نہیں، ہیزل نہیں، وہ تو پہلے ہی اپنی مسئلوں میں الجھی ہے۔ اسلام نے سر پر ہاتھ مار کر گویا اپنی بیگم کی عقل پر ماتم کیا ہو۔ تو تم سے کس نے کہا ہے اس مسئلے میں ہیزل کو گھسیٹو؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اب سنو کیا کرنا ہے۔ اسلام اسے سمجھا رہا تھا اور مشل کی آنکھوں میں چمک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یقیناً اسے اسلام کا پلان بہت پسند آیا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب ہینا تیسرے فلور کی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا، شاید فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں اسلام بھائی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں، اس وقت وہ سو رہی ہیں۔ ہاں، میں ان کا خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ بات کرتے دوسرے فلور تک آ چکی تھی۔ رملہ لاؤنج میں بیٹھی اسنیکس کھا رہی تھی۔ ہنا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ او ہیلو، ادھر آؤ۔ اس نے ہنا کو آواز دی۔ ہنا نے بے یقینی سے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ مجھے بلایا؟ اس نے سینے پر انگلی رکھی۔ رملہ نے اس کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے یہاں؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں طنز کیا۔ ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظر ہنا کے ہاتھ میں پکڑے فون پر گئی۔ کافی مہنگا فون تھا۔ یہ فون کس کا ہے؟ اس نے کچھ چبھتے لہجے میں طنز کیا۔ ہنا نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ڈالی۔ میرا ہے، کچھ تفاخر سے اس نے جواب دیا۔ رملہ کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واہ، دو کوڑی کے نوکر بھی لاکھوں کا فون رکھتے ہیں، کہاں سے چوری کیا ہے؟ ہنا کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، میں دو کوڑی کی کوئی نوکر نہیں ہوں، اور یہ موبائل مجھے اسلام بھائی اور زویا آپی نے میری سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ ہنا نے بھی کچھ اونچے لہجے میں جواب دیا۔ رملہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ جاؤ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اس نے گویا حکم سنایا۔ ہنا نے بے یقینی سے خود کو دیکھا۔ میں آپ کی کوئی نوکر نہیں ہوں۔ اس کا چہرہ اب ذلت سے سرخ ہو چکا تھا۔ رملہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر مسکراتی اس کی طرف بڑھی۔ اچھا،
इस मैडम की तो नौकरी 24 घंटे करती हो। हिना ने हाथों की मुट्ठियां भींचकर गुस्सा काबू किया। वो मुझे आपकी तरह ट्रीट नहीं करती, मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं। वैसे भी मैं इस हवेली में सिर्फ इस्लाम भाई और जोया आपी का हुक्म मानने की रवादार हूँ। रमला की आंखों में अब गुस्सा भरने लगा। इस्लाम भाई की चमची, जाओ चाय बनाकर मेरे कमरे में लाओ, वरना आज की रात होने से पहले तुम्हें इस हवेली से बाहर निकलवा दूंगी। उसने अब कुछ ऊंचे लहजे में हुक्म दिया और अपने कमरे में गायब हो गई। हिना ने एक नज़र उसे देखा जो कमरे में चली गई थी। फिर वो खुलकर मुस्कुराई और ऊपर सीढ़ियों के दहाने पर खड़ी मशल को ओके का साइन दिया। मशल ने भी हाथ से थंब अप का साइन दिया। हिना फौरन सीढ़ियों की जानी बढ़ी और नीचे किचन में दाखिल होकर चाय बनाने लगी। अगले 10 मिनट बाद वो चाय का कप हाथ में पकड़े वापस ऊपर आई। इतने में मशल सीढ़ियाँ उतरकर दूसरे फ्लोर पर आ चुकी थी। मशल को इशारा करती वो रमला के कमरे में दाखिल हुई। वो मोबाइल में गुम थी। ये ले चाय, उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ चाय का कप रमला की तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले रमला कप पकड़ती हिना ने जानबूझकर कप उसके ऊपर उलट दिया। आ रमला की चीखें निकल गईं। हिना ने बौखलाकर फौरन माफ़ी मांगी। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ। रमला के बाजू पर चाय गिर गई, साथ सारे कपड़े भी चाय से भर गए। यू बेवकूफ़ जाहल, दफ़ा हो जाओ। वो चीखती हुई उठी और जल्दी से अपना ड्रेस कपबोर्ड से निकालकर वॉशरूम में घुस गई। हिना ने जल्दी से बेड पर पड़ा रमला का मोबाइल उठाया, वॉशरूम के दरवाजे तक आई, फिर बाहर से दरवाज़ा बंद किया और होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो बाहर निकली। मुझे तो कौड़ी की नौकर कहा था ना, अब सड़ो यहीं। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाती बाहर लाउंज में आई। मशल वहीं बैठी थी। उसने फ़ौरन रमला का मोबाइल मशल के सामने किया और मशल ने दादिया नज़रों से हिना को देखा। वाह हिना, तुमने तो कमाल कर दिया। हिना ने सर को खम किए उसकी शाबाशी कबूल की। मशल ने जल्दी से रमला के मोबाइल के चार्जिंग प्लग में यूएसबी लगाई और सॉफ्टवेयर रमला के मोबाइल में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो इंस्टॉल हो गया। मशल ने जल्दी से वही यूएसबी उसके मोबाइल के सॉकेट से निकालकर हिना के हाथ में मौजूद मोबाइल से लगाई और इसमें भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। फिर जल्दी से दोनों मोबाइल में एक जैसा पिन कोड लगाया और फिर वही खोल कर मुस्कुराई थी। हो गया, जाओ मोबाइल वहीं रखाओ। हिना फ़ौरन रमला के कमरे में आई। मोबाइल वहीं रखकर उसने एहतियात से वॉशरूम के दरवाजे को बाहर से अनलॉक किया और बिना शोर पैदा किए बाहर भाग गई। वो दोनों फ़ौरन उठी और ऊपर चली गईं। कमरे का दरवाज़ा खुलकर दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुईं। आपी, ये काम कैसे करेगा? हिना ने तजस्सुस से पूछा। मशल ने मोबाइल हिना के सामने लहराया। इससे हमने रमला के मोबाइल का क्लोन तैयार कर लिया है। ये मोबाइल अब बिल्कुल रमला के मोबाइल की तरह काम करेगा। मतलब तुम ये समझ सकती हो कि इस वक्त मेरे हाथ में रमला का मोबाइल है। वो किसी को भी कॉल या मैसेज करेगी या कोई भी डाटा जो इसके मोबाइल में होगा वो सारा खुद ब खुद इस मोबाइल में शो हो जाएगा। और हिना की आंखें हैरत से फैली। वाह, टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। हिना की बात पर मशल हंसी थी। हाँ, और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसान का दिमाग। अच्छा चलो, अब देखते हैं इसके मोबाइल में क्या क्या है और कौन है रमला का असल शौहर और कौन है उसका खुफिया मददगार। मशल ने संजीदगी से कहा। फिर दोनों बेड पर बैठकर सारा मोबाइल खंगालने लगी। दूसरी जानिब रमला शावर लेकर बाहर निकली, वापस बेड पर बैठकर अपने मोबाइल में गुम हो गई, इस बात से बेखबर कि अब रमला की तबाही उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मशल की प्रेगनेंसी का 7वां माह चल रहा था और इस वक्त वो बैठी रमला का कच्चा चट्टा खोल रही थी। एक तो तुम्हारे भाई को ज़रा मेरी हालत का एहसास नहीं, इस हालत में देखो मुझसे हैकिंग करवा रहे हैं। उसने मुंह बनाकर किसी बच्चे की तरह हिना से शिकायत की। हिना दिल खोल कर हंसी थी। इस्लाम और मशल ने हिना को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। मशल आरामदा हालत में बेड पर बैठी, फिर रमला का व्हाट्सएप ओपन किया और उसकी पर्सनल चैट्स पढ़ने लगी। उसकी आंखों में चमक उभरी। रमला तो अब बहुत बुरी फंसी जा रही है।